بلیٹن میں سب سے پہلے آپ کو خبر دیں، وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ خود کو جمہوری کہنے والے فوج کو کہہ رہے ہیں کہ حکومت کو گرا دو۔ مافیاز کی خواہش ہے کہ کسی نہ کسی طرح حکومت گرا دیں۔ ان مافیاز کے ملک سے باہر اربوں ڈالر پڑے ہیں۔ یہ سارے مافیاز اپنے مفادات کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان اپوزیشن پر برس پڑے، کہا حکومت آئی تو پہلے ہفتے میں کہہ دیا کہ حکومت فیل ہو گئی، ہمیں مسلسل تنقید سننا پڑی، بہت صبر سے 2.5 سال گزارے، جہاں قانون کی حکمرانی ہو وہاں چینی یا قبضہ مافیا نہیں چل سکتے۔ کہا اب مشکل وقت نکل گیا ہے۔ آج آپ سارے خوشحال ملک دیکھ لیں، جو بھی ملک خوشحال ہے وہاں قانون کی حکمرانی ہے، وہاں طاقتور قانون کے نیچے ہے، وہاں کوئی چینی مافیا نہیں پھر رہا، کوئی قبضے مافیا نہیں ہے، وہاں کوئی پولیٹیکل مافیاز نہیں ہیں۔ کہتے ہیں کہ جی ہمیں NRO دو نہیں تو ہم گورنمنٹ کرا دیں گے، فوج کو بلا رہے ہیں کہ فوج آ کے گورنمنٹ گرا دے، اپنے آپ کو ڈیموکریٹک موومنٹ کہتے ہیں، فوج کو کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ گرا دو، کیونکہ ان کا ساروں کا مقصد اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کرنا ہے۔ یہ سارے جو مافیاز ہیں یہ اپنے مفادات کی حفاظت کی جنگ لڑ رہے ہیں، اور اس کے لیے وہ تیار ہیں گورنمنٹ گرانے کے لیے، کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہیں۔ باہر پیسے پڑے ہوئے ہیں ان کے اربوں اربوں ڈالر، ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ گورنمنٹ آئے گی تو پیسے ان سے واپس آ جائیں گے۔ ان کی ساری چوریاں سامنے آ رہی ہیں، تو ان کی کوشش یہ ہے کہ اس سے پہلے گورنمنٹ کو کسی نہ کسی طرح گرا دو۔ تو پہلے تو معیشت تباہ کر دی، یہ ڈرامہ چلتا رہا۔ جدھر آگے ہم جا رہے ہیں اب، میرا ایمان ہے کہ جو سب سے مشکل وقت تھا اس سے ہم نکل گئے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے سوال کیا ہے کہ IMF نے پاکستان کو $1.25 ارب دیے، وہ امداد کہاں خرچ ہوئی؟ ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے کورونا وبا کا مقابلہ کرنے کے لیے $1.5 ارب کی امداد دی، بتایا جائے کہ یہ فنڈ کن منصوبوں پر لگایا گیا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے سوال کیا کہ عالمی بینک کے $200 ملین کہاں خرچ کر دیے؟ وزیر اعظم کے کرونا ریلیف فنڈ میں پاکستانیوں نے اربوں روپے جمع کرائے، ان فنڈز کو کہاں خرچ کیا گیا؟ بلاول بھٹو نے کہا کہ وزیر اعظم نے فنڈز میں گھپلوں کو چھپانے کے لیے آڈیٹر جنرل رپورٹ کو روکا ہوا ہے۔ PTI حکومت آڈیٹر جنرل رپورٹ کے اعداد و شمار میں ہیر پھیر کی کوشش بند کرے، PTI حکومت فی الفور آڈٹ رپورٹ کا اجرا کرے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ PTI حکومت نے نااہلی اور کرپشن سے معیشت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچایا۔ PTI کی اشرافیہ ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے۔ اور اسلام آباد کی شمس کالونی کے علاقے میں موٹر سائیکل سوار ملزمان کی فائرنگ سے 2 پولیس اہلکار جاں بحق اور ملزمان فرار ہو گئے۔ پولیس کے مطابق ایگل اسکواڈ نے موٹر سائیکل سواروں کو روکنے کی کوشش کی، تعاقب کرنے پر ملزمان نے فائرنگ کر دی، جس کے اہلکار اشتیاق اور بشیر شاہ شہید ہو گئے۔ DIG آپریشنز افضال احمد نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ تحقیقات مکمل ہونے سے پہلے کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے۔ ملزمان کو پکڑنے کے لیے CCTV کیمراز کی مدد لی جائے گی۔ وفاقی وزیر داخلہ نے IG سے واقعے کی رپورٹ طلب کر لی ہے۔ شیخ رشید نے کہا کہ اسلام آباد میں پولیس اہلکاروں پر فائرنگ کے واقعات پر انتہائی تشویش ہے۔ اور جیسا کہ ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے اسلام آباد میں دہشت گردی کے واقعات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ 8 سے 10 روز میں اسلام آباد کے لیے نئی فورس شروع کرنے اور اسلام آباد کو محفوظ بنانے کا ہم ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پیٹرولنگ اسکواڈ میں 150 موٹر بائکس بھی شامل ہوں گی۔ وزیرستان روانگی سے قبل ویڈیو پیغام میں بتایا کہ افغانستان کے ساتھ سرحد پر باڑ لگانے کا کام 2 مہینے میں، جبکہ ایران کے ساتھ سرحدی باڑ سال کے آخر تک مکمل کر لی جائے گی، اور سرحد پر ریکارڈ کو ڈیجیٹل بنانے کے لیے بھی کام جاری ہے۔ کچھ عرصہ سے اسلام آباد میں دہشت گردی کے واقعات بڑھ رہے ہیں، اور رات کو بھی ایک ہیڈ کانسٹیبل بشیر شاہ اور ایک کانسٹیبل عاشق شاہ جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں۔ آج میں 2 روزہ دورے پر شمالی اور جنوبی وزیرستان جا رہا ہوں تاکہ بارڈر مینجمنٹ کو دیکھا جائے، اور ہم اپنی صلاحیتیں جو ہیں بارڈرز پر جو اوپن بارڈر ہیں، ایک تو فینسنگ لگا رہے ہیں افغانستان کے ساتھ، انشاءاللہ 2 مہینے میں افغان بارڈر کی فینسنگ مکمل ہو جائے گی۔ اس وقت کوئی 88% مکمل ہے، اور اس کے بعد ہم ایران کے بارڈرز پہ بھی فینسنگ کرنے جا رہے ہیں جو اس وقت 44% ہے، سال کے آخر تک مکمل ہو جائے گی۔ اور عمران خان کی حکومت کی خواہش ہے اور اس پر کام شروع کر دیا گیا ہے کہ تمام بارڈرز جو ہیں وہاں ایک ایسا سسٹم لایا جائے کہ اس میں انٹرنس کی جو ہے کوئی نہ کوئی جو ہے
स्लिप हो, कोई एंट्री हो, इलेक्ट्रॉनिक एग्जिट हो और इलेक्ट्रॉनिक उसकी जो एंट्री हो, इस पर काम हो रहा है इंशाअल्लाह ताला। और 150 मोबाइल ईगल स्क्वाड जो है चंद दिनों में, इसी हफ्ते में 50 ईगल स्क्वाड हमने पुराने बनाए हैं जिसमें 2-2 अफराद होंगे और 100 नए मोटर बाइक स्क्वाड होंगे जो कि इस्लामाबाद को सेफ सिटी के साथ अटैच होंगे। गिलगित में लाइन डिपार्टमेंट्स के मुलाजमीन को मुतालबात के हक में वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट से बाहर धरना देने से पुलिस ने रोक दिया है। आंसू गैस की शेलिंग की और लाठी चार्ज किया जिससे 2 मुजाहिरीन जख्मी हो गए। गिलगित में लाइन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन धरना देने के लिए वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट के करीब पहुंचे तो गोल चौक पर पुलिस ने मुजाहिरीन को रोक दिया। मुजाहिरीन ने मुजाहमत की तो पुलिस ने आंसू गैस की शेलिंग और लाठी चार्ज शुरू कर दिया जिससे 2 मुजाहिरीन जख्मी हो गए। सदर ऑल लाइन डिपार्टमेंट्स एसोसिएशन गिलगित बल्तिस्तान इजलाल हुसैन का कहना है एहतजाज विफाक से मंजूर शुदा टाइम स्केल, यूटिलिटी, एग्जीक्यूटिव और दीगर अलाउंसेस के नोटिफिकेशन के इजरा में ताखीर के खिलाफ है। पुरअमन मुजाहिरीन पर पुलिस का तशद्दुद काबिल मजम्मत है। दूसरी तरफ डिप्टी कमिश्नर नवीद अहमद और SSP मिर्जा हुसैन पुलिस भी गोल चौक पहुंच गए जहां पर मुजाहिरीन से उनके मुज़ाकरात जारी हैं। कोरोना की सूरत हाल से मुतल्लिक आपको अपडेट करें। मुल्क में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना से मजीद 83 अफराद इंतकाल कर गए। मजीद 1893 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। NCOC के मुताबिक गुज़श्ता रोज 52,859 टेस्ट किए गए। मुस्बत केसेस की शरह 3.5% पर आ गई। कराची के एक्सपो सेंटर में मास वैक्सीनेशन सेंटर में अवाम का रश है। सब काज़म है, वैक्सीन लगवाओ, कोरोना भगाओ। तफसीलात बताएंगे खावर खान। जी, कराची के मास वैक्सीनेशन सेंटर से आपको अपडेट कर रहा हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है डॉक्टर राजकुमार, उनसे जान सर ये बताएगा कि इस वक्त फाइजर लग रही है या अभी वेट कर रहे हैं, और एस्ट्राजेनेका के हवाले से बताएगा। एस्ट्राजेनेका हम सब 40 साल से अबव लगा है क्योंकि उसका गवर्नमेंट की तरफ से हमें परमिशन है 40 से बिलो नहीं लगाना है। कुछ लोग कहते हैं कि WHO ने अप्रूव के लिए, हमें कंफर्म जब नहीं मिलेगी अप्रूव किए नहीं किए, इसलिए मैं उनको भेजते हैं, मैं अभी एम्बेसी से कंफर्म करके आ जाओ कि लगवानी नहीं लगवानी है। बहुत शुक्रिया। ये थे डॉक्टर राजकुमार जो कि तफसीलात बता रहे थे कि अब तक इस एक्सपो सेंटर के मास वैक्सीनेशन से 1,68,000 से ज़ायद लोगों को वैक्सीनेट किया जा चुका है। जुम्मे के रोज़ भी आज लोगों की बड़ी तादाद जो है यहाँ वैक्सीनेट कराने अपने आप को आ रही है। सबका ये अज़्म है कि वैक्सीन लगाओ और कोरोना को भगाओ। जी, सिंध में स्कूल्स कब खुलेंगे, फैसला आज या कल होगा। वज़ीर तालीम सिंध सईद गनी ने ऐलान किया है। कहते हैं कि स्कूल खोलने से मुतल्लिक फैसले मुशावरत से किए हैं। स्कूल खोलने से मुतालिक फैसले जब भी करेंगे मुशावरत से करेंगे। कहा अगर बाजार, शादी हॉल खोलते हैं तो वैक्सीनेशन लाजमी होगी। शहरी लाजमन अपनी वैक्सीनेशन करवाएं। जिला चारसद्दा में कोरोना वैक्सीनेशन की शरह बढ़ाने के लिए मास वैक्सीनेशन सेंटर का कायम अमल में लाया गया है जहां शहरियों को 24 घंटे वैक्सीन लगाने की सहूलत मुयस्सर है। इससे मुतालिक तफसीलात जानते हैं सब्ज़ अली खान तरीन से। जी, जिला चारसद्दा में शहरों को ज्यादा से ज्यादा कोरोना से बचाव की वैक्सीन लगाने के लिए मास वैक्सीनेशन सेंटर का क़याम अमल में लाया गया है जहां पर शहरियों को वैक्सीन लगाने के लिए दिन रात सहूलत मुयस्सर है। इस वैक्सीनेशन सेंटर की वजह से वैक्सीन लगाने वालों की तादाद में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। यहाँ पर ये बात काबिल जिक्र है कि जिला चारसद्दा की कुल आबादी 17 लाख है और महकमे सेहत के रिकॉर्ड के मुताबिक अभी तक 40,000 शहरों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है, जबकि वैक्सीन की शरह को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए BHUs की सतह पर भी वैक्सीनेशन सेंटर कायम करना ज़ेर गौर है। पाकिस्तान सुपर लीग के शेड्यूल के ऐलान के साथ ही बेशतर खिलाड़ियों के करंतना मुकम्मल हो गए और खिलाड़ियों ने ग्राउंड का रुख करके ट्रेनिंग शुरू कर दी। ताहम अब भी 10 से ज्यादा खिलाड़ी करंतना में हैं। लाहौर कलंदर और इस्लामाबाद यूनाइटेड के बाद पिशावर ज़ल्मी और कोयटा ग्लेडिएटर के खिलाड़ियों ने भी ट्रेनिंग का आगाज कर दिया। कोयटा ग्लेडिएटर के मैनेजर आजम खान के मुताबिक आंद्रे रसल, उस्मान शनवारी, उस्मान खान, आजम खान, साइम अयूब, जाहिद महमूद और दीगर खिलाड़ियों ने कोच मोइन खान की निगरानी में ट्रेनिंग की। आजम खान का कहना है कि कप्तान सरफराज अहमद, फॉफ डुप्लेसी, मोहम्मद हसनैन, नसीम शाह और डिलपोर्ट ताखीर से पहुंचने के बाद ताहाल करंतना में हैं, जो अपना करंतना की मुद्दत पूरी करने के बाद ट्रेनिंग का आगाज करेंगे। दूसरी जानिब पिशावर ज़ल्मी का भी पहला ट्रेनिंग सेशन हुआ। कोच डैरन समी, डेविड
मिलर और फियन एलन का करंतना मुकम्मल नहीं हुआ। सिंध हाई कोर्ट ने पीएसपी चेयरमैन मुस्तफ़ा कमाल को नाअहल करार देने से मुतल्लिक दरखास्त पर फैसला सुना दिया। अदालत ने मुस्तफ़ा कमाल को नाअहल करार देने से मुतल्लिक MQM के साबिक रुकने कौमी असम्बली सलमान मुजाहिद बलोच की दरखास्त मुस्तरद कर दी। अदालत ने 13 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसले में कहा कि दरखास्त गुजार ने मुस्तफ़ा कमाल की नाअहली के लिए ताख़ीर से रुजू किया है। PSP सरबराह के खिलाफ MQM रहनुमा सलमान मुजाहिद बलोच ने दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि मुस्तफ़ा कमाल 1994 से 2002 तक कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज में मुलाजमत करते थे। मुस्तकिल गैर हाज़री मिसकंडक्ट पर मुस्तफ़ा कमाल को मुलाजमत से बरतरफ कर दिया गया था। कानून के मुताबिक मुलाजमत से बरतरफ शख्स किसी भी अवामी ओहदे या इलेक्शन लड़ने के लिए नाअहल होता है। उसके बावजूद मुस्तफ़ा कमाल ने PS 117 और सिटी नाज़िम के लिए इलेक्शन लड़ा। मुस्तफ़ा कमाल का इलेक्शन कमीशन में जमा कराया गया कागजात नामजदगी बदनीयती और झूठ पर मबनी था। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक अवान ने कहा है कि पानी के मामले पर सिंध हुकूमत सियासी पॉइंट स्कोरिंग के सिवा कुछ नहीं कर रही। पीपल्स पार्टी की जानिब से पानी के मामले पर झूठा और बेबुनियाद प्रोपेगेंडा जारी है। फिरदौस आशिक अवान ने मजीद कहा कि पंजाब बड़ा भाई है, हर सूबे को सपोर्ट करेंगे, पंजाब के अवाम के हुकूक पर किसी को डाका नहीं डालने देंगे। पानी जैसे हसास मामले पर सिंध हुकूमत का मनफी रवैया समझ से बालातर है। लाहौर से खबर है जहां कोरोना वैक्सीनेशन मुहिम में जिलाई इंतजामिया की गफलत मंजर आम पर आई है। मरहूम शख्सियात को भी कोरोना आगही मुहिम का हिस्सा बना दिया। फिल्म और टीवी के मारूफ अदाकार काजी वाजिद को मुहिम का हिस्सा बना दिया गया। मजीद तफसीलात हासिल करेंगे जियो न्यूज़ की नुमाइंदा उम्मे फरवा से। उम्मे फरवा, ये क्या मामला है आखिर? जी, जिला इंतजामिया जो है वो लाहौर के अंदर कोरोना वैक्सीन मुहिम को कामयाब बनाने के लिए दिन रात मेहनत कर रही है और दिन रात उनकी मेहनत का ये सूरत हाल है कि उन्होंने जो टीवी और फिल्म की मारूफ है जिनका इंतकाल हो चुका है 2018 में, तो उनकी तस्वीर जो है इस मुहिम का हिस्सा बना दिया है। और इस हवाले से जगह जगह लाहौर के मुख्तलिफ मकामात पर उन्होंने अवेजा किए हैं फ्लैक्सेस, और जिसमें उनकी की जो तस्वीर है वो भी अवेजा की गई है। जबकि कोरोना जो है वो 2019 में के एंड में आया था, जबकि 2018 में उनका इंतकाल हो चुका है और इस पर बाकायदा फ्लैक्सेस के ऊपर DC लाहौर का नाम भी मेंशन किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया उम्मे फरवा तफसीलात के लिए। और बाद मौसम की, कराची का मौसम आज भी गर्म है। ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 36 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने का इम्कान है। मौसम की अपडेट जानते हैं जियो न्यूज़ की नुमाइंदा कशमाला नजीब से। जी कशमाला। जी, मौसम के हवाले से ताज़ा तरीन अपडेट ये है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान मौसम गर्म और मरतूब रहने का इम्कान है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि कम से कम दर्जा हरारत 29.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा 34 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 53% है और जुनूब मगरिब से 14 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। मैं इस वक्त एक पार्क में मौजूद हूँ। सूरज की तपिश बहुत तेज़ है, जबकि आसमान पे कहीं कहीं हमें सफ़ेद बादल नज़र आ रहे हैं, लेकिन धूप की तपिश बहुत ज़्यादा है और हवाओं की रफ्तार भी हल्की होने की वजह से मौसम जो है वो अच्छा नहीं लग रहा।